Hello students. Today we are going to start our next topic in the sources of energy. Okay, so today we are going to discuss about the non-conventional sources of the energy, that is the sun, and we are going to study about what will be happen if applied the sun's energy into the some types of application. Then how can we use these types of energy and how can we utilize the solar energy? Okay, so that is our the main topic, but let us take a brief preview on the previous topics. That is, generally we have studied about the a good source of energy. Energy can be called as the capability to do some types of work. Also, we have discussed the sources can be classified as the renewable and non-renewable sources of energy. Okay, then we have discussed the features of good fuels. Okay, then we have discussed fossil fuel, disadvantages of fossil fuel. Then we have discussed the diagram of thermal power plant, and then we have discussed the further details on the thermal power plant. After that, we have studied about the block diagrams of hydropower plant and its efficiency and how it will be worked, okay, in the real time. Advantages of hydropower plant, that we have already seen. Okay, then we have discussed the disadvantages of hydropower plant. Then we have discussed the biomass. So there are three types of biomass that can be used as the sources of the energy. So for that we have discussed the what is a wood and how can it will be used for as the biomass, or it can be used as the energy. Then we have discussed about the charcoal. Then we have discussed the cow dung, and these types of biomass can be used in utilization, can be applied into the biogas plant. So generally, then we have discussed what is the block diagram of biogas plant, and we have studied about the description of it, that a biogas plant is the dome-like structure built with the bricks where cow dung and other biowaste are mixed with the water to form a slurry and put it into the digester. These types of study we have already done. Then we have discussed the wind energy. Also, the block diagram for wind energy we have already discussed. Then we have discussed the advantages of wind energy and limitations of wind energy. Okay, so it has the high initial cost and the regular maintenance will be required for the wind energy, to produce the wind energy. So this is the main limitations for wind energy. Now we are going to study about this solar energy. So you can see on the screen that there are so many solar panels in the given figure. Okay, here you can see that so many solar panels that produces the solar, so that converts the solar energy into the electrical energy, and that can be utilized into our domestical or industrial purposes. Okay, so the sun is the main source of energy for all living beings on this earth. The sun has an endless reservoir of energy which would be available for all. Example of solar energy are solar rooftop, solar cooker, solar panel. These are the main examples that we seen in the practical life already. Okay, there are so many students, they have already put it the solar panels into their rooftops. Okay, so they know about it, what is the solar panel and how can it can be utilized into the electrical energy and how it can be useful to us and how efficient it will be. Okay, so these types of discussion will be already done in the non-conventional sources of energy, and this is the solar energies discussion. So this is the solar cooker. If you make the project of that solar cooker, then you know about it. Okay, a solar cooker and a water heaters use the solar energy to operate. तो सोलर कुकर और वाटर हीटर्स जो होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करके फिर उसका यूज करके हम लोगों को देते हैं. ओके, तो किस तरह से वो यूज करके देते हैं, तो सोलर कुकर है वो जनरली हम लोगों को फूड बनाने के लिए काम करता है, जबकि कि वाटर हीटर है जो सोलर वाटर हीटर है वो किसके लिए काम करता है, तो पानी गर्म करने के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं. Black surfaces absorb more energy than the other surfaces. That is why the solar rooftops or solar cooker they have made into the black coating. Okay, क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है वो जनरली क्या करता है, तो वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और ब्लैक कलर ऐसा है कि जो ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है. Other surface, okay, then other surfaces and solar cooker use this property by coating their insides black. Okay, तो क्या करते हैं कि सोलर कुकर का इनसाइड का जो कोटिंग है वो ब्लैक कलर का होता है. इसकी वजह से फिर क्या करते हैं, वो सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके फिर खाना गर्म होता है और फिर खाने को वो पकाते हैं. दे यूज रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस लाइक मिरर्स टू फोकस द सन्स रे. उसके अंदर दूसरी चीज क्या होती है, तो रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस लाइक मिरर्स होते हैं. तो आप लोगों को याद होगा जब भी हम लोगों ने मिरर्स के बारे में स्टडी किया था, तो हम लोगों ने स्टडी किया था कि मिरर्स का काम क्या है,
तो रिफ्लेक्शन करवा के फिर क्या करना है, उसको रेडिएशन जो लाइट की रेज है उसका रिफ्लेक्शन करवाने का काम है। तो मिरर्स का इस्तेमाल करते हैं, वो हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं सन की रेज को किसी एक जगह पर डालने के लिए। तो सपोज कि यहाँ पर जो है आपका खाना पक रहा है, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर मिरर डाल दोगे तो उसके साथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगी वो क्या करेगी, अंदर ही अंदर क्या करेगी, वो प्रोसेस करवाएगी सन की रेज का, और खाना जो है वो धीरे धीरे जाके गर्म होगा। The device is covered with the glass plate, thereby establishing the greenhouse effect by trapping heat inside the cooker. तो जनरली क्या होता है कि इसका जो है हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हम लोग कहते हैं ना, वो स्मॉल लेवल पे करें तो इस तरह की ग्रीन हाउस क्रिएट होगी। और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उसी का इस्तेमाल हम लोग खाना बनाने के लिए कर रहे हैं। जो हमारी पृथ्वी के ऊपर पूरा ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर जो है वो, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है हमारे टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, उसी बेस्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग सोलर कुकर के अंदर, कि भाई सारे रेडिएशन जो है वो एक बार अंदर आ जाए तो फिर वो बाहर नहीं निकलने चाहिए। तो क्या होगा, अंदर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा, मतलब यहाँ पर जो कोटिंग के अंदर का टेम्परेचर जो है वो क्या होगा बढ़ेगा। तो इसी के हिसाब से फिर क्या होगा, धीरे धीरे हमारे अंदर का जो खाना है यहाँ का वो क्या होगा, गर्म होता जाएगा। सोलर सेल का इस्तेमाल जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और हम लोग प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कर कर रहे हैं। ओके, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज द सोलर सेल। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 1 मार्क्स के अंदर कभी कभी पूछा जाता है कि अ टिपिकल सेल्स डेवलप हाउ मेनी वोल्टेजेस। तो यू कैन राइट दैट टिपिकल सेल डेवलप्स अ 0.5 to 1 volt and 0.7 watt ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, जनरली क्या होता है कि एक सेल जो होता है, मतलब कि मान लो कि एक सेल है, तो ये एक सेल जो है वो जनरली कितना वोल्ट डेवलप करता है, तो वो करता है 0.5 to 1 वोल्ट जितना सप्लाई जो है वो डेवलप करता है, वो इतना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। ओके, a large number of cells, such as cells can combine to form the solar panel, which can generate the power large enough for practical uses. तो इतने ऐसे अगर मैं बहुत ज़्यादा सेल्स ले लूँ, तो एक एक सेल अगर मैं ले लूँ, तो ऐसे मैं अगर 200 या 300 सेल्स को कनेक्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 200 to 300 वोल्ट जितना सप्लाई क्रिएट हो जाएगा। और 200 और 300 वोल्ट जितना सप्लाई क्रिएट हो जाएगा, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, उसको प्रैक्टिकल यूजेस के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि इतना डिफरेंस काफ़ी है किसी इलेक्ट्रॉन को पास करवाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर। क्योंकि हमारे घर में भी प्रैक्टिकल यूजेस में कितना हमारा वोल्टेज का वेरिएशन है, 230 वोल्ट से लेकर प्लस और माइनस 15 वोल्ट जितना वेरिएशन हम लोगों को मिलता है। यानी कि कभी कभी 225 तक वोल्टेज चले जाते हैं, तो कभी कभी 250 तक वोल्टेज चले जाते हैं, और फिर भी इतना वेरिएशन में हमारे सारे इक्विपमेंट्स जो है वो अच्छे से काम करते रहते हैं। इस वजह से इसका यूज करना बहुत ही ज़रूरी है। और इसका दूसरा जो बेनिफिट है वो क्या है कि भाई इसमें कोई भी सोर्स जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो है पूरा का पूरा सोलर एनर्जी के ऊपर चल रहा है। सोलर एनर्जी क्या करेगी, इसको चार्ज करेगी, और चार्ज करने के बाद क्या करेगी, तो जनरली उसको कन्वर्ट करेगी, और कन्वर्ट करने के बाद वो इलेक्ट्रिसिटी का। पर इसका एक डिसएडवांटेजेस भी है कि ये जो है वो क्या होता है कि भाई मान लो कि रेनी सीजन हो गई, फिर हमारी सीजन हो गई, तो फिर क्या होगा उसमें कि भाई जनरली जो जनरेट होना चाहिए पावर, ओके, उतना ज़्यादा पावर जनरेट ना हो पाए, इस वजह से इसको हम लोगों को ज़्यादा रखना पड़ेगा। सोलर पैनल्स हम लोगों को ज़्यादा रखनी पड़ेगी, ज़्यादा रखेंगे तब जाके हम लोगों को इनफ पावर मिलेगा पूरे घर को चलाने के लिए। तो ये एक हमारा डिसएडवांटेज है कि भाई रेनी सीजन्स में बहुत ही हम लोगों को प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। दूसरी ये कि ये जो है वो बहुत ही क्या है, कॉस्टली है, तो इसके लिए पैसे बहुत लगते हैं। सपोज अगर एक सोलर पैनल आपको लगवानी है तो 35,000 से 40,000 तक का खर्चा आप लोगों को होता है। और फिर उसमें भी अगर आप लोग अच्छी कंपनीज में जाओगे तो 50 to 60,000 का जो है वो आपको चार्जेस लगे। बट ये जो है वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार अगर आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो आपको 10 या 15 ईयर्स तक कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो आपको करना चाहिए। दूसरा ये कि हम लोगों का जो सोर्सेज है वो वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी के ख़त्म होने वाले हैं। दूसरा ये कि इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस जो है वो पर डे बढ़ रहे हैं। ओके, तो उसके लिए भी हम लोगों को क्या करना चाहिए, उसके लिए भी हम लोगों को सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत ही ईजी है। ओके, एडवांटेजेस जो है वो ये कि नो मूविंग पार्ट्स है, तो कोई मूविंग पार्ट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा जनरली, तो नो मूविंग पार्ट्स है तो मेंटेनेंस जीरो हो जाएगा।
इसी वजह से रिक्वायर्स अ लिटल मेंटेनेंस, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में डाल दिया, फिर इसके अंदर तो कोई हिलने डुलने वाली चीज़ तो है ही नहीं। ओके, तो फिर क्या होगा, सिर्फ सन एनर्जी इस पे क्रिएट होगी और सन एनर्जी की सीधा कन्वर्जन होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, हम लोग उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, तो रिक्वायर अ लेस मेंटेनेंस एंड कैन बी सेटअप इन द रिमोट एरिया। दूसरा ये कि आप लोग इसको लगा कहाँ सकते हो, तो आप लोगों को बहुत बड़ी जगह चाहिए, और आप कहीं पर भी लगा सकते हो, रूफ टॉप के ऊपर लगा सकते हो, अगर बहुत बड़ी जगह पे लगाना है तो भी लगा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोलर सेल्स के बारे में बात करते हैं, रिक्वायर्ड उसके डिसएडवांटेजेस जो है वो देख लेते हैं हम लोग। ये रिक्वायर्स अ स्पेशल ग्रेड सिलिकॉन विच इज नॉट इजीली अवेलेबल, तो इसके अंदर जो स्पेशल ग्रेड सिलिकॉन यूज होता है वो इजीली अवेलेबल नहीं होता, इसी वजह से इसका जो प्राइस है वो बहुत ही हाई होता है। यूसेज ऑफ सिल्वर और फॉर इंटरकनेक्शन मेक्स इट एक्सपेंसिव, तो इसके अंदर जो ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिल्वर का, वो भी इंटरकनेक्शन के लिए बहुत ही हाई है, तो कॉस्टली हो जाएगा बहुत ही। ट्रैफिक सिग्नल्स, कैलकुलेटर्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, स्पेस प्रॉब्स and many toys are fitted with the solar cell. जनरली इसके यूजेस है वो सारे कि इतनी इतनी जगहों पर ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं हम सारी दूसरी जगहों से मिलने वाली एनर्जी के बारे में। तो इसमें जनरली हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी जगहों पर से हम लोगों को एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी को क्या कहा जाता है। तो जनरली सी मैसेज को हम लोगों को एनर्जी मिलती है, वो उसका इस्तेमाल हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। The seas and the ocean and the other water bodies are sources of the kinetic and potential energy. Because it has the river, then it can be used as the potential, it has the potential energy, and that can be converted into the kinetic energy, and that can be used into the rotation of the turbine, and that can be used as the to convert the mechanical energy into the electrical energy. Okay, तो इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका। तो सीज और ओशंस में काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, और इमेंस वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड मोशंस ऑफ वेव्स होती है। तो इस वजह से इसकी अंदर की जो एनर्जी है, पानी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, पानी के अंदर छुपी हुई एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इसके अंदर जो एनर्जी है उसका यूटिलाइजेशन हम लोग कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं टाइडल एनर्जी की। तो टाइडल्स आर वेरिएशंस इन द लेवल ऑफ वाटर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पूल्स ऑफ द मून। तो आप लोगों को पता होगा, जब भी आप लोग कहीं पर जा रहे होंगे तो बोल रहे होंगे कि भरती है या फिर ओट आने वाली है, या ऐसे कुछ आप लोग सुनते होंगे जो वर्ड्स आपके दिमाग में। तो वो जनरली क्या है कि पानी का लेवल बढ़ रहा होगा, पानी का लेवल कम हो रहा होगा बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून। ये हम लोग सीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो जनरली क्या होगा उसके अंदर कि भाई मून जब इन करीब आ जाएगा, ग्रेविटेशनल पुल्स बढ़ेगा, तो वो क्या करेगा, हमारा जो वेव्स का लेवल है वो क्या करेगा, इंक्रीज भी करेगा। ओके, और जब भी कम हो जाएगा तो वो डिक्रीज करेगा लेवल को, सीज के लेवल को। तो इस वजह से जो है वो क्या होता है कि टाइडल के अंदर की एनर्जी जो है वो क्रिएट होती है। ओके, क्योंकि ये जो पुश और पुल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, मून की वजह से, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, द फिनोमिना ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ द वाटर लेवल और हाई एंड द लो टाइड्स एंड द डिफरेंस इन द सी लेवल्स गिव द टाइडल एनर्जी। तो इसकी वजह से, टाइड्स की वजह से, टाइड्स में जो एनर्जी क्रिएट होती है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, टाइडल एनर्जी कह सकते हैं। उस टाइडल एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो टाइडल एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड एंड बाय कंस्ट्रक्टिंग द डैम नियर द नैरो ओपनिंग्स ऑफ द सी। तो इसका इस्तेमाल हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई टाइडल के आसपास हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या डैम क्रिएट कर सकते हैं, और डैम के साथ साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, टर्बाइंस को ज्वाइंट कर सकते हैं। और टर्बाइंस जो है क्या होंगे, टाइडल जब भी आएगी तभी भी टर्बाइन रोटेट होंगे, और जब भी जाएगी तभी भी टाइड्स जो है वो आएगी तभी भी टर्बाइन रोटेट होंगे, और टाइड्स जब भी जाएगी तो भी टर्बाइंस रोटेट होंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई टाइड्स का इस्तेमाल करके टर्बाइन को रोटेट करवा सकते हैं। और आप लोगों को पता ही है कि हर एक चीज़ के अंदर टर्बाइन अभी जब भी रोटेट हो जाएगा तो उसके साथ साथ जनरेटर जो है वो ज्वाइंट होगा, और जनरेटर जो है सीधा क्या कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर देगा। पर इसका इस्तेमाल जो है बहुत ही लिमिटेड एक्सेस हम लोगों को मिलता है, बिकॉज सारी जगहों पर तो ये टाइड्स क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है। सो इट इज़ लिमिटेड टू प्लेसेस नियर द सी। ओके, और बहुत ज़्यादा सीज के पास भी ये क्रिएट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ओके, पर जितनी जगह पर हो सकता है उतनी जगह पर पॉसिबल कर रहे हैं इसका इस्तेमाल हम लोग। अब वेव एनर्जीज के बारे में बात करते हैं, तो सेम एज द टाइडल एनर्जी वी कैन सी दैट वेव्स प्रोसेस इज अ लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट कैन बी हार्नेस्ड टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। Waves are generated by the strong winds blowing across the sea. अब ओशन थर्मल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। द डिफरेंस इन द टेम्परेचर्स ऑफ द वाटर एट द सर्टेन डेप्थ इन द ओशन इज एक्सप्लॉइटेड टू ऑब्टेन द एनर्जी। जनरली क्या होता है कि डिफरेंस जो है
वो टेम्परेचर का हम लोगों को देखने को मिलता है पानी के अंदर। तो वो क्या होता है कि पानी के ऊपर के लेवल का जो हम लोग सरफेस देखते हैं वहाँ पर शायद कम होगा, अंदर के लेवल का शायद ज़्यादा होगा। तो उसमें जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, उस टेम्परेचर के डिफरेंस को अगर हम लोग किसी एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर दें तो उसका इस्तेमाल हम लोग ओशन, उसका उसका नाम जो है वो हम लोग ओशन थर्मल एनर्जी कह सकते हैं। ओके, टेम्परेचर डिफरेंस मस्ट बी 20 डिग्री सेल्सियस बिटवीन द सरफेस एंड द वाटर अप टू द डेप्थ ऑफ द 2 किलोमीटर। जनरली ये जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, तो 20 डिग्री सेल्सियस तक का होना चाहिए। मतलब अपर के लेवल और लोअर के लेवल के बीच में 2 किलोमीटर के डिफरेंस में यहाँ पर अगर मान लो कि 35 डिग्री सेल्सियस होगा, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 10 डिग्री सेल्सियस जितना होना चाहिए, या तो फिर 15 डिग्री सेल्सियस। तो एटला इतना सा डिफरेंस होगा, तो वो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। और ये जो एनर्जी है वो क्या होगी, ओशन थर्मल थर्मल एनर्जी होगी। ओके, warm water is used to boil the volatile ammonia to form the vapor that move the turbine. Cold water is used to condense the vapor back to the liquid. वार्म वाटर का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, वार्म वाटर जो है उसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं वेपर को जनरेट करने के लिए, और फिर उस वेपर को क्या कर सकते हैं हम लोग, टर्बाइन के ऊपर फेंक सकते हैं। और स्टीम टर्बाइन जो होंगे वो क्या होंगे, रोटेट होंगे, और रोटेट होने की वजह से वो क्या क्रिएट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे। जियोथर्मल एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट ट्रिप्ड इनसाइड द अर्थ। molten rocks form the earth's core sometimes come up due to the geological changes and get trapped into the hot spot। कई बार क्या होता है कि हीट जो होती है वो किसी अर्थ के क्रस्ट के अंदर, रॉक्स के अंदर छुपी हुई होती है। हम लोगों को पता है कि जमीन के नीचे लावा है, तो लावा के अंदर से जो हीट निकलती है वो हीट कहाँ पर अटक जाती है, तो वो कई बार जमीन के क्रस्ट के अंदर जो रॉक्स होते हैं बड़े बड़े, वहां पर क्या होती है कि वो वहीं पर रह जाती है। वो हीट एनर्जी जो होती है वो वहां पर स्टोर्ड हो जाती है। अब कई बार क्या होता है, व्हेन अंडरग्राउंड वाटर कम्स इन द कांटेक्ट विद द हॉट स्पॉट, जनरली कई बार उसका जो उसके साथ साथ जो जमीन के नीचे पानी रहा होगा। अब आप लोगों को पता है किसी गर्म चीज पे अगर हम लोग पानी को छिड़के तो क्या होगा, वहां से वाटर वेपर रिलीज होगी। आप लोगों को पता है ना। अगर तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि घर घर पर हम लोग क्या स्टील का बाउल लेंगे और बाउल के ऊपर फिर गर्म होने के लिए रखेंगे, और फिर हम लोग थोड़ा सा पानी डालेंगे, तो वो क्या होगा, जल्दी से वाटर वेपर क्रिएट होगा उसका। तो सोचो यही बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है कि भाई रॉक्स के अंदर हीट एनर्जी है, और हीट एनर्जी के आसपास अगर पानी जो है वो छुएगा उस रॉक्स को, जिस रॉक के पास हीट एनर्जी है वो उसके अंदर जो है उसके ऊपर पानी जो है वो टच करेगा, तो वो पानी सीधा किस में कन्वर्ट होगा, स्टीम के अंदर कन्वर्ट होगा। और उसी स्टीम को हम लोग फिर से किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, टर्बाइंस को रोटेट करने के लिए, और देन दैट कैन बी यूज्ड एज दी जनरेट दी इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो इस तरह से जियोथर्मल एनर्जी का भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। और अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, इसमें हम लोग जनरली 2 टाइप से एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। एक फ्यूजन से कर सकते हैं और एक फ्यूजन से कर सकते हैं। 2 टाइप्स की प्रोसेस हम लोग करवा सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए हम लोग 2 टाइप्स की प्रोसेस कर सकते हैं। एक फ्यूजन प्रोसेस कर सकते हैं और एक फ्यूजन प्रोसेस कर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस क्या है, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। तो मान लो कि न्यूक्लियर फिजन इज द प्रोसेस वेयर द हैवी एटम्स यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम इज बॉम्बार्ड विद द न्यूट्रॉन्स। यानी कि क्या होता है कि मान लो कि यहाँ पर एक जो है वो यूरेनियम का एटम है। ओके, U92 236। ओके, तो ये मान लो कि यूरेनियम का एटम है, इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, न्यूट्रॉन का बॉम्बार्ड करूंगा। ओके, न्यूट्रॉन्स जो है वो बॉम्बार्ड करूंगा, तो क्या होगा, एक चेन रिएक्शन की प्रोसेस होगी। जनरली ये 1 जो है वो 2 में कन्वर्ट होगा, 2 जो है वो फिर 4 2 में कन्वर्ट होंगे, उसके अलावा 2 जो है वो 2 में कन्वर्ट होंगे। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा यूरेनियम जो है वो डिवाइड होंगे। और जैसे जैसे ये डिवाइड होते जाएंगे, यहाँ पर सारी जगहों पर क्या प्रोड्यूस होता जाएगा, यहाँ पर सारी जगहों पर हीट प्रोड्यूस होती जाएगी। और उसी हीट का इस्तेमाल मैं किसके लिए कर सकता हूँ, जी हाँ, आप लोगों ने सही समझा। अब इस हीट एनर्जी में स्टीम होगी, और स्टीम का इस्तेमाल मैं करूँगा फिर से टर्बाइंस को रोटेट करने के लिए, या तो फिर मैं करूँगा सीधा एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए। ओके, bombard with the neutrons that split the atoms to give the lighter nucleus. This process releases the tremendous and amounts of energy that can be utilized into the producing the electricity. Okay,
न्यूक्लियर एनर्जी की सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज वो ये है कि भाई ये जो रेडिएशंस एक बार क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं उसको कंट्रोलिंग करने के लिए पाइप्स रखने पड़ते हैं। अगर वो जो रोड्स होते हैं, ये न्यूक्लियर पूरा पावर प्लांट होता है ना, यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेम्बर होते हैं। वो चेम्बर के अंदर एक चेम्बर जो होता है वो रिएक्टर होता है। आर्क रिएक्टर का एक चेम्बर होता है और आर्क रिएक्टर के चेम्बर के अंदर ये सारी प्रोसेस होती है। पर ये जो हम लोग यूरेनियम, थोरियम या प्लूटोनियम का इस्तेमाल कर रहे हैं एनर्जी को जनरेट करने के लिए, वो बहुत ही हार्मफुल है। अगर इसमें से रेडिएशंस एक बार बाहर निकल गए, पावर प्लांट्स के बाहर ये रेडिएशंस निकल गए, तो ये जो है वो रेडिएशंस एटमॉस्फेयर के अंदर आएंगे और एटमॉस्फेयर में आने की वजह से वो बहुत ज़्यादा डैमेजेस करेंगे। ओके, और बहुत इतना ज़्यादा डैमेज करेंगे कि जितना ये कोरोना वायरस भी नहीं कर सका है। और इतना ज़्यादा हम लोगों के स्किन के ऊपर इफेक्ट करेंगे, कैंसर करेंगे, और ये तो छोड़ो, पर हमारी फ्यूचर जनरेशन के ऊपर भी ये इफेक्ट कर सकते हैं। जनरली आप लोगों ने ये पिछली बार घटना को सुना होगा कि भाई हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो बॉम्बार्ड हुआ था वो न्यूक्लियर बॉम्ब ही था। ओके, तो वो उसका अभी भी रेडिएशन जो है वो अभी भी शुरू है। उन लोगों ने वहां पर सिर्फ एक एग्जाम्पल, एक प्रैक्टिकल किया था कि भाई एक्सपेरिमेंट किया था कि भाई क्या होता है इसका रेडिएशन का। पर सोचो कि अभी तक वहां पर चल रहा है। फिर अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोग देख सकते हो, चेरनोबिल के बारे में स्टडी कर सकते हो। चेरनोबिल एक ऐसी जगह है, तो चेरनोबिल पे क्या हुआ था कि वहां पर एक पावर प्लांट है जो पिपेट या ऐसा कुछ गांव गांव है, वहां पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था। और सबसे ज्यादा वहां पर क्या हुआ कि ये जो आर्क रिएक्टर अभी मैंने बोला ना, वो रिएक्टर पूरा ब्लास्ट हो गया। तो ब्लास्ट होने की वजह से फिर क्या हो गया कि वहां से जो है वो पूरे की पूरे रेडिएशंस स्टार्ट हुए एटमॉस्फेयर में फैलने की वजह से। तो वो एटमॉस्फेयर में फैलना स्टार्ट हो जैसे ही हुए, उसमें से ही धीरे धीरे क्या हुआ कि फिर उसी का जो इस्तेमाल है, उसी का जो रेडिएशंस का लेवल है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ये पावर प्लांट से 200 या 300 किलोमीटर अवे जो पावर प्लांट था, दूसरा दूसरा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था, वहां के जो अलार्म्स थे वो अलार्म्स बजने लगे। सोच लो कि रेडिएशंस धीरे धीरे वहां पर, फिर पूरा जो गांव था यहाँ पर वो पूरा गांव को खाली करना पड़ा और बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज्ड हुआ। और ये हमारे वर्ल्ड में सबसे पहली ये घटना हुई थी। चेरनोबिल की जो घटना है वो सबसे पहली हमारे यहाँ पर विश्व में पहली बार हुई थी। ओके, तो इसी तरह से इसका इस्तेमाल, इसका जो रेडिएशन है वो बहुत ही डेंजरस है हमारे लिए, और पूरा का पूरा गांव खाली करना पड़ा था और बहुत ज़्यादा। और आज भी ऐसा कहा जाता है कि चेरनोबिल में अभी भी जो रेडिएशन है वो 80 या फिर 100 ईयर्स तक रहेंगे। 100 या तो फिर 120 ईयर्स तक वहां पर रेडिएशन रहेंगे और अभी भी वहां पर कोई जा नहीं सकता। ओके, जो अगर जाना चाहता है तो उसको कैसे जाना पड़ेगा, पूरा का पूरा रेडिएशन से कोटिंग। जैसे अभी आप लोगों ने देखा है ना कि कोरोना वॉरियर्स जो होते हैं वो डॉक्टर किस तरह का सूट पहनते हैं, वो उसी तरह का सूट पहन के फिर वहां पर जाना पड़ेगा। तब जाके लोगों को रेडिएशंस नहीं लगेंगे, तब जाके वहां पर कुछ ना कुछ काम होगा। पर रेडिएशंस लेवल तो अभी भी वहां पर है, तो रहना तो वहां पर इम्पॉसिबल है। तो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स क्रिएट करता है चेरनोबिल की ये जो घटना हुई है दुनिया के अंदर। उसने बहुत ज्यादा ऐसी सारी चीजों को सिखा दिया है कि भाई इसका इस्तेमाल बहुत ही डेंजरस है। और जब भी ये अगर लीक हो गया, एक बार अगर ये लीक हो गया, तो फिर इसको कंट्रोलिंग करना बहुत ही मुश्किल है। ओके, डिसएडवांटेजेस जो है वो मैंने अभी बहुत सारे बताया है। डिसएडवांटेजेस बहुत है, जैसे जितने इसके एडवांटेजेस है उससे ज़्यादा इसके डिसएडवांटेजेस है। पर फिर भी एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है तो इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। न्यूक्लियर वेस्ट क्रिएट होता है जिसको डिकम्पोज करना या तो फिर कहीं पर भी डालना बहुत ही इम्पॉसिबल है। हाई सेटअप एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ यूरेनियम है, यूरेनियम तो बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। कैन बी यूज टू डिस्ट्रक्टिव पर्पज। ओके, तो डिस्ट्रक्टिव पर्पज के लिए मैंने बोला ना कि अभी लोगों ने एक्सपेरिमेंट जो किया था वो इसी का इस्तेमाल था। ये न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस है। फ्यूजन में हम लोग क्या कर सकते हैं, जनरली एक न्यूट्रॉन को किसी एटम के ऊपर डालेंगे तो डिवाइड होंगे, और डिवाइड होने के साथ साथ वो एनर्जी क्रिएट करेंगे। जबकि फ्यूजन में हम लोग क्या करेंगे, तो दो चीजों को, दो एटम्स को हम लोग क्या करेंगे, एक साथ जोड़ेंगे, और जिसमें जोड़ेंगे उसी उसमें भी हीट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी, और इसका इस्तेमाल भी हम लोग क्या कर सकते हैं। ओके, तो ये भी बहुत ही हाई ह्यूज एनर्जी जो है वो रिलीज करता है। फ्यूजन की प्रोसेस से भी हम लोग एनर्जी का रिलीज कर सकते हैं।
और उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. डिफरेंस बिटवीन द रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, तो ये जनरली रिसोर्सेज जो है वो पॉल्यूशन फ्री है, जबकि ये जो है वो पॉल्यूशन फ्री नहीं है. इनएग्जॉस्टेबल है, ये एग्जॉस्टेबल है. these resources क्या are present in the unlimited quantity, these resources are present in the limited quantities. एनवायरमेंट फ्रेंडली है, जबकि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली तो नहीं है मोस्ट ऑफली. रेट ऑफ द रिन्यूअल इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ द कंजम्पशन, और रेट ऑफ रिन्यूअल इज लोअर देन द रेट ऑफ कंजम्पशन. ओके, तो जनरली ये सारे डिफरेंस है, आप लोग लर्न कर सकते हो. आज के जो होमवर्क है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. एंड दैट्स इट, वी हैव फिनिश्ड अवर चैप्टर. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 आज लिखना है आप लोगों को. जियो थर्मल एनर्जी and its uses. Question number 2, what you understand by nuclear energy. क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों के लिए, डिफरेंस बिटवीन renewable and non-renewable resources. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपको लिखना है, शॉर्ट नोट ऑन tidal energy. Okay, so these are the questions for your homework. Okay, you have to write this in your homework book. Okay, so that's it for today. Thank you very much for hearing this lecture. If you had any kind of doubt, you can ask me in the comment section, or you can ask me in the WhatsApp, or you can ask me on the Instagram also. Okay, till then, bye bye everyone, and take care of yourself.